اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی یہ پہلی آیات ہے۔ سورہ آل عمران جو کہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 200 آیتیں ہیں اور اسی طرح 20 رکوع 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس کے شروع کی 83 آیتیں نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 ہجری میں آئے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا مفصل بیان جو ہے وہ انشاءاللہ قل تعالوا جو آگے آیت سورہ آل عمران کی آئے گی اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باقی سورہ آل عمران کی فضیلت سیم وہی فضیلتیں ہیں جو فضیلت سورۃ البقرہ کی ہیں، کہ سورۃ البقرہ جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کی حفاظت کا ذمہ میرا رب خود کرتے ہیں۔ اس گھر سے جتنے بھی شریر قسم کے جنات ہیں، جنات کے شر سے اللہ کی ذات اس گھر کی حفاظت فرماتی ہے۔ انسانوں کے شر سے اللہ کی ذات اس گھر کی حفاظت فرماتی ہے۔ جس گھر میں یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ باقی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کے اندر اسم اعظم ہے، جیسا کہ پہلے آیت الکرسی کے اندر بھی گزر چکے ہیں۔ حدیث کے اندر تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت تھی غالباً، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسم اعظم رکھا ہے، اس آیت کو لے لیا جائے، اور اسی طرح اس آیت کے بارے میں بھی وہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ وہاں بھی بتا چکا ہوں کہ اسم اعظم کا مطلب کیا ہے، اسم اعظم کہتے کس کو ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اپنی دعا کے اندر اس نام کے واسطے سے، وسیلے سے اس نام کو پڑھ کر، اس نام سے اللہ کی عظمت اور حمد و ثنا کو بیان کر کے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، کچھ مفسرین نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اور کچھ نے نہیں کیے، بہرحال یہ نقل در نقل چلا آ رہا ہے۔ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور واللہ اعلم بمرادہ کہہ کر ہم بھی یہاں آگے چل دیتے ہیں جس طرح مفسرین اکرام نے کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، توحید بیان ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں جس کے سوا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ جب بھی لفظ آ جائے نا لا الہ الا ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سارے خداؤں کی نفی کر دی، اللہ تعالیٰ نے سارے خداؤں کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے
चाहे उनका ताल्लुक़ रिज़्क़ के हवाले से हो या बारिशों के हवाले से हो या औलाद के हवाले से हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का किया करते थे। जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, रिज़्क़ देने वाली ज़ात किसकी है समझ आ जाना चाहिए, अल्लाह की है। सेहत देने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह की है। अल्लाह ही हमारे माबूद हैं, अल्लाह ही हमारे खालिक हैं। उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वही है जो हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसको फ़ना कोई नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ भी इस ज़मीन का हिस्सा है, जो कुछ भी इस ज़मीन में है, वो सारी की सारी चीज़ें फ़ना होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह की है, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की है। वही है जो हमेशा रहने वाला है। वल हय्युल क़य्यूम, और वही है जिसने सारी की सारी चीज़ों के निज़ाम को संभाला हुआ है, संभाला हुआ है। हय्युल क़य्यूम, एक निज़ाम, एक आदल, एक तराजू मेरे रब ने रखा हुआ है। उस तराजू, वो तराजू आदल और इंसाफ के साथ चल रहे हैं। और जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा ना, ये दुनिया ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह ज़िलज़ाल के अंदर क्या इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ओ ज़मीन को जब पकड़ के यूँ झंझोड़ा जाएगा, झंझोड़ा जाएगा, यूँ जैसे कपड़े को पकड़ के यूँ छानते ना, ऐसे ऐसे ज़मीन को यूँ हिलाया जाएगा। फरिश्ता पकड़ के यूँ हिलाएगा एक हाथ से, यूँ यूँ ऐसे ऐसे, सारे सारे ज़मीन से निकल के उड़ रहे होंगे। कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ाल इंसान, उस वक़्त इंसान कहेगा, वक़ाल इंसान मा लहा, इसको क्या हो गया, ये ज़मीन को क्या हो गया। मैं तो बड़े मज़े से सो रहा था और मैं तो बड़े मज़े की नींद कर रहा था, इस ज़मीन को क्या हो गया कि मुझे निकाल के इसने बाहर फेंक दिया। वक़ाल इंसान मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिस, यौमइज़िन तुहद्दिस, यौमइज़िन तुहद्दिस। देखो देखो इस आयत पर ज़रा गौर करो। यौमइज़िन तुहद्दिस, मेरे रब ने कहा उस दिन ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये सारी की सारी खबरें, जिस आज न्यूज़ चैनल चला कर तुम खबरें सुनते हो ना कि फ़ला जगह पर यह हो गया, फ़ला जगह पर यह हो गया, फ़ला जगह पर यह हो गया, ये खबरें यौमइज़िन तुहद्दिस, ये ज़मीन सुनाएगी, ज़मीन सुनाएगी, अल्लाह के सामने फरियाद करेगी, या अल्लाह ये मेरी पीठ पर चलता था तो अकड़ कर चलता था, इसने मेरी पीठ पर यह गुनाह किए, इसने मेरी पीठ पर यह गुनाह किए, इसने मेरी पीठ पर फ़लाँ का हक़ खाया, फ़लाँ का हक़ दबाया, फ़लाँ के साथ इसने धोखा किया, फ़लाँ को माल बेचा, इसने मिलावट करके दिया, फ़लाँ के साथ ख़यानत की, फ़लाँ का हक़ मारा, फ़लाँ का इतना मारा, फ़लाँ का इतना मारा। इसने छुप छुप कर इतने इतने बड़े बड़े गुनाह किए और ज़ाहिरन इतने ये गुनाह किए और तेरी ये नाफरमानी की। ये ज़मीन यौमइज़िन तुहद्दिस, यौमइज़िन तुहद्दिस, ये ज़मीन उस दिन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा। आज तो खामोश है ना, हर बंदा कह रहा है बेजान है, खामोश है, बेजान है, खामोश है। बिअन्न रब्बका अवहा लहा, अल्लाह ताला कहेंगे हाँ ज़मीन बताओ बताओ मुझे, ओ इन मेरे बंदों ने तेरे ऊपर कौन कौन से जुल्म किए हैं। ये ज़मीन तो दूर की बात है, ये ज़मीन तो दूर की बात है। आज हम अपने जिस्म को पालने के लिए, जिस्म को पालने के लिए जो कुछ खिलाते हैं ना हलाल देख रहे हैं, ना हराम देख रहे हैं, ना जायज़ का पता है और ना ही नाजायज़ का पता है। सिर्फ जो भी आए पेट के अंदर, जो भी आए जेब के अंदर, जो भी आए बैंक बैलेंस होना चाहिए, मालो दौलत होनी चाहिए। इस जिस्म की खातिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक गुनाहगार को बुलाएंगे, कहेंगे कि तूने फ़लाँ गुनाह किया, वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने नहीं किया। उसकी ज़ुबान बंद कर देंगे, अल्लाह ताला हुक्म देंगे ज़ुबान को खामोश हो जाओ। अल्लाह ताला हुक्म देंगे जिस्म को, हाँ भाई बताओ इसने क्या क्या जुल्म किया तुम्हारे साथ। ये उंगलियां बोलेंगी, आंखें बोलेंगे, बाल बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, दिल बोलेगा, एक एक हिस्सा बोलेगा, या अल्लाह इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, इसने मेरे साथ फ़लाँ जगह पर यह जुल्म किया। ये जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये भी हमारा नहीं होगा कल क़यामत वाले दिन, ये भी हमारा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। वल हय्युल क़य्यूम, वही ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है, और वही ज़ात है जिसने सारे के सारे निज़ाम को संभाला हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें समझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी बंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह बंदगी करने का हक़ है, अल्लाह ताला हमें उसी तरह बंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह की ज़ात मुझे भी कुरान की तिलावत करने की और कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात को भी कुरान की तिलावत करने की और कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।